Hello everyone, welcome back to Ansarkari, a very happy Republic Day. And today I will be covering the newspaper for 25th of January 2025. So first of all, WHO, how it prepares as the US has decided to exit and has withdrawn from the WHO. So हम देख सकते हैं कि कैसे एक बिगेस्ट फाइनेंशियल बैकर था यूएस, जो कि 18% ऑफ द फंडिंग कंट्रीब्यूट करता था। WHO's मोस्ट रीसेंट 2 ईयर बजट 2024 से 25 के बीच में इट वाज $6.8 बिलियन, जिसके साथ साथ यूएस ने विड्रॉ करने की बात की है एंड चाइना ने और ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की बात की है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या ये लीड कर सकता है टू डोनर बायस, क्योंकि जैसे जैसे चाइना का रोल बढ़ेगा इन द डब्ल्यूएचओ, क्या उसकी वजह से एक बायस क्रिएट हो सकता है। एंड ऑल्सो ये भी दिखाता है कि जो अथॉरिटी है ऑफ द डब्ल्यूएचओ कैसे वो डिपेंडेंट है ऑन द फंडिंग। नेक्स्ट, China's refusal to sign the water treaty. Why is it worrying? So China is constructing a water dam, super dam, on the Brahmaputra river at the Great Bend, that is U Bend, and it is planning to build a 60,000 megawatt dam, which is very close to the border of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, in the Tibet region. So it becomes concerning for the lower riparian states because can be it can control the water flow directly. Also, it is being built at such a large level, and China has also refused to sign a binding international water treaty. And ये दिखाता है कि it is going forward with selective sharing of hydrological data, जिसकी वजह से कंसर्न रेज होता है, ना कि सिर्फ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को लेके बल्कि बांग्लादेश एंड वहां के भी सेफ्टी कंसर्न्स एंड वाटर सिक्योरिटी को लेके। तो कीवर्ड selective sharing of hydrological data, that is what China is opting, and also how it will be impacting the water diplomacy. So it's बड़े लेवल पे बनने वाला है, इसीलिए ना कि सिर्फ वाटर के नीड्स के लिए बल्कि सेस्मिक एक्टिविटी एंड ऑल्सो ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ लाइफ के लिए भी जरूरी हो जाता है, और फॉर ऑल द और लोअर रिपारियन स्टेट्स की एक बाइंडिंग ट्रीटी होनी चाहिए एंड एक एक्सपर्ट कमिटी होनी चाहिए। Then beyond the China factor, so Indonesian President Prabowo Subianto, he will be he is the chief guest at the 76th Republic Day of India, एंड ये इंडिया एंड इंडोनेशिया के स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भी दिखाता है, हाउ वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स अ मोर डीपर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। बोथ द नेशंस दे आर एमिंग टू एक्सपैंड their bilateral partnership beyond the regional confines जैसे कि आसियान, and we are basically moving towards a broader and a more multidimensional collaboration. Key areas, Robovo also emphasized on greater strategic autonomy, जो कि resonate करता है with the India's approach to a multipolar world order. So beyond China जाने की बात की जा रही है कि इंडो पैसिफिक में हम काम कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में हम काम कर सकते हैं, जैसे कि ट्राइलेटरल एंगेजमेंट भी हो सकता है जिसमें इंडिया, जापान एंड इंडोनेशिया को हम इंक्लूड कर पाए। तो ये आर्टिकल यही हाईलाइट करता है कि कैसे जो इंडोनेशिया के न्यू फॉरेन मिनिस्टर हैं एंड जो मोदी साथ में इंडियन इंडोनेशिया का जो रिलेशनशिप है वो एम्पलीफाई हो सकता है। तो हमें और स्पेसिफिक चीजों पे काम करना चाहिए rather than just treating the relationship as a key player for China plus strategy या फिर to counterbalance Chinese factor. So that is why it there is written that there is need to go beyond the China factor. Then Trump and Trump 2.0 and Iran.
सो कैसे जियो पॉलिटिक्स जो है वो इवॉल्व हो रहा है इन द मिडिल ईस्ट रीजन. And in the second administrative term of Donald Trump, he will be focusing on US and Iran's relationship, also अरब एंड ईरान डायनेमिक्स. एंड यहाँ पे ये भी दिखाता है कि ना कि सिर्फ रीजन को बल्कि पूरे ही वर्ल्ड के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आने वाला है. तो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रम्प बेसिकली he pursued maximum pressure policy on Iran, which was marked by sanctions on the economic perspective and then also withdrawal from Iran nuclear deal. So it is potentially possible that in Trump 2.0 administration, it is expected to continue with the hardline stance about having speculative engagements. So अरब एंड ईरानियन रिलेशनशिप, सऊदी अरेबिया एंड ईरान की भी बात करते हैं तो काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ है फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स. It has also triggered and it has also resulted in warming to Tehran through Chinese brokered diplomacy. सो मीडिएटर की तरह रोल यहाँ पे चाइना ने प्ले किया है. एंड अब्राहम अकॉर्ड जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉर्मलाइजिंग द टाइज बिटवीन इजराइल एंड अदर अरब नेशंस. तो बट ईरान और इसराइल की अगर बात करते हैं तो उनकी जो राइवलरी है इट रिमेन सेंट्रल टू द रीजनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव. सो मिडिल ईस्ट के अंदर कैसे अलायंसेस फॉर्म हो रही हैं एंड क्या डिफरेंट फैक्टर्स हैं. सऊदी अरेबिया, ईरान एंड इसराइल की भी बात करते हैं. तो ये जो रीजनल प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म है उसकी तरफ हम देख रहे हैं कि शिफ्ट देखा जा रहा है. अरब लीग भी जो है उनका रोल इंक्रीज होते जा रहा है इसमें. तो रशिया एंड चाइना दे आर आल्सो असर्टिंग ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द रीजन, जो कि यूएस के भी हेजेमनी को चैलेंज करता है. तो कैसे ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, रियलिज्म हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स में. देन ऑल्सो फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट नेशंस की कैसे शेप कर रही है पूरे रीजन को. Then Odisha it tops Niti Fiscal Health Index and Chhattisgarh is the next best. So Odisha, Chhattisgarh, Goa and Jharkhand they have been ranked as the best performing states क्योंकि उनका strong revenue management रहा and low fiscal deficit रहा. उड़ीसा की बात करते हैं तो इट स्कोर्ड हाई क्योंकि कंसिस्टेंट जीडीपी ग्रोथ देखा हमने, डेट सस्टेनेबिलिटी देखा. देयर वाज आल्सो फोकस ऑन द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर. पुअर परफॉर्मर्स की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स पंजाब, आंध्र प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल एंड केरला. दे वर द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स क्योंकि हाई डेट बर्डन है, इन एफिशिएंट रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है. साथ ही साथ जो आंध्र प्रदेश है एंड पंजाब है दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद द स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन केस ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट. तो फिस्कल चैलेंज जो है जो कि होता है हाई डेट टू जीएसडीपी रेशियो, वो बेसिकली प्रिवेंट करता है, प्रेवलेंट है अमंग दी पुअरर परफॉर्मर्स और एक कॉमन फैक्टर है. तो रिवेन्यू मोबिलाइजेशन आप कैसे कर रहे हैं थ्रू टैक्स रिफॉर्म्स एंड कैसे पब्लिक स्पेंडिंग को भी आप एफिशिएंट बनाएंगे वो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है. तो बेटर डेट मैनेजमेंट एंड और ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस के अंदर होनी चाहिए. देन वोकल फॉर लोकल, खादी. खादी की बात करते हैं तो एक सिंबल है इंडिया के लिए, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को दिखाता है, इवॉल्विंग रोल है खादी का एंड इंडिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ ग्लोबल वर्ल्ड. तो यहाँ इस सेक्टर के अंदर हम इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं एमएसएमई सेक्टर को लेके एंड बेसिकली सस्टेनेबिलिटी के लिए भी एक सिंबल खादी इंडिया के लिए हम बोल सकते हैं. देन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहां पे हम देख रहे हैं डिफरेंट मेंबर्स मिल रहे हैं, रूल बेस्ड ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं. इंडिया के भी काफी स्टेट्स ने वहां पे फंडिंग प्रोक्योर की है जैसे कि तेलंगाना, महाराष्ट्र के केस में हमने देखा. तो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम की इम्पोर्टेंस ये दिखाता है एंड एम्फोसिस करता है कि एक स्टेबल और रेगुलेटरी कंडीशन होना चाहिए, लीगल सर्टेनिटी होना चाहिए फॉर द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ ट्रेड टेंशन. तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो रोल प्ले कर रहा है. इट वाज द मीटिंग वाज हेल्ड इन डेविस इन स्विट्जरलैंड.
देन प्रबोवो सुबियांतो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, वो चीफ गेस्ट हैं। तो क्या क्या कोलैबोरेटिव रीजन पर्सपेक्टिव हो सकता है रिगार्डिंग इंडिया एंड इंडोनेशिया रिलेशनशिप? हमने देखा कि बियॉन्ड चाइना फैक्टर जानने की भी हमें जरूरत है। एंड potential areas for collaboration, it includes transfer of technology, knowledge sharing, then also renewable energy projects. So जियोथर्मल के अंदर भी वो लीड करते हैं। इंडोनेशिया's access to abundant natural resources, सो बेसिकली इंडिया वहां से भी सीख सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप हम इंक्रीज कर सकते हैं। कंट्री स्पेसिफिक एनर्जी डायनेमिक की बात करते हैं तो इंडोनेशिया की जो एनर्जी पॉलिसी है, इट इज बेसिकली अभी कोल का बहुत रोल है। तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के ऊपर भी इंडोनेशिया वर्क कर रहा है ताकि ट्रांजिशन किया जा सके टूवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया भी अभी रिलायबल है इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर, बट साथ ही साथ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रिड कैपेसिटी हम इंक्रीज करें, सोलर टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करें। तो एक शेयर्ड विजन हम फ्यूचर में देख सकते हैं इंडिया एंड इंडोनेशिया का। कैसे इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को भी हम शेप कर सकते हैं। दोनों ही कंट्रीज का जो विजन है फॉर इंडो पैसिफिक वो एक पर्सपेक्टिव में ही अलाइन होता है फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। एंड इंडोनेशिया जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि 17,000 आइलैंड है, कोस्टलाइन है दैट स्पैन्स फॉर मोर देन 1 लाख किलोमीटर्स। सो इंडोनेशिया हार्टलाइन भी बन जाता है ग्लोबल ट्रेड का। एंड इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर भी इंडोनेशिया इज व्यूड एज अ की पार्टनर इन मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो मैरिटाइम कॉपरेशन भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो मिस्टर प्रबोवो सुबियांतो, the president of Republic of Indonesia, who is the chief guest of this Republic Day, उसी की कंटिन्यूएशन में है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन, ग्रोइंग ट्रेड पार्टनरशिप है। बायलेटरल ट्रेड बिटवीन द टू नेशन इट हैज रीच्ड $29 बिलियन था फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। एंड अभी एम कर रहे हैं कि इसको डबल कर पाए हम 2025 तक, $50 बिलियन तक। देन डिफेंस टाइज हैं जिनको हम स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं। तो गरुड़ शक्ति ये डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि इंडिया एंड इंडोनेशिया साथ में करते हैं प्रैक्टिस। देन स्पेस कॉपरेशन को लेके टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड ग्राउंड स्टेशन इंडोनेशिया के अंदर भी हैं जो कि इसरो यूज करता है, रिलाई करता है फॉर डेटा। सिविलाइजेशन एंड कल्चरल टाइज हैं। देन टूरिज्म सेक्टर ऑल्सो, बाली लोग जाते हैं कितना ज्यादा, सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट टू बाली। ब्राइट फ्यूचर है एंड बेसिकली बोल सकते हैं इंडियन डायस्पोरा का भी वहां पे रोल है। मोर देन 1 लाख पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन दे रिसाइड इन इंडोनेशिया। देन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर के ऊपर हम कर सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो साथ ही साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी सिक्योरिटी, फॉसल फ्यूल डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, ट्रांजिशनिंग टू द रिन्यूएबल एनर्जी, एक रेजिलियंट फूड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, फूड डाइवर्सिफिकेशन, एजुकेशन ऑफ फार्मर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, मार्केट इंप्रूविंग द मार्केट एक्सेस। सो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जहां पे हम बोल सकते हैं कि इंडिया एंड ऑल्सो इंडोनेशिया दे कैन वर्क टुगेदर। Then US, it begins deportation and how many Indians could be impacted. So deportation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिमूव किया जाएगा अ नॉन citizen from US for violating the immigration law. US may detain and deport non-citizens who participate in criminal acts and they are a threat to the public security and they are also violating their visa. सो इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट है वहां पे। असाइलम सीकर्स आर आल्सो फेसिंग चैलेंजेस, इसकी वजह से स्क्रूटनी एंड जो पॉलिसीज हैं और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो इंडियंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेंगी? रिसेंटली एस जे शंकर ने भी मीटिंग की थी
विद द यूएस काउंटर पार्ट, तो वहां पे भी उन्होंने स्टेट किया दैट इंडिया इज रेडी टू टेक बैक द सिटीजन्स जो कि रजिस्टर्ड हैं एज एन इंडियन सिटीजन, उनको वापस लेने के लिए वी आर रेडी। तो ये आर्टिकल ये भी दिखाता है कि इलीगल इमिग्रेशन रिफॉर्म एंड इमिग्रेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट जो है वो एम्फोसाइज कर रहा है डिपोटेशन पे, कैसे इंडो यूएस रिलेशनशिप को भी ये शेप करेगा, इमिग्रेशन और ह्यूमन राइट इशू भी इससे क्रिएट होता है, लीगल पाथवे जैसे कि H1B वीजा जिसके बारे में रिसेंटली बहुत डिबेट भी चला, वो इंक्रीजिंगली स्क्रूटनाइज किया जा रहा है उनको, जिसमें 70% बेनिफिशियरी इंडियंस हैं। उसी वजह से इंडियन प्रोफेशनल्स के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट भी इसका आएगा। तो ये भी दिखाता है कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी होती है माइग्रेशन और एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के बीच में। देन नेक्स्ट इज CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कल हमने देखा भी था अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इलेक्शन इंटेग्रिटी इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस जो होती है इलेक्टोरल प्रोसेस की, उसको ग्लोबली मेजर किया जाता है। तो क्या चैलेंजेस हैं इन मेजरिंग डेमोक्रेसी? तो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी इंडेक्स जैसे कि फ्रीडम हाउस या वी डेमोक्रेसी है, दे आर ऑफन क्रिटिसाइज क्योंकि दे लैक ट्रांसपेरेंसी एंड मेथोडोलॉजी के अंदर बायस देखा जाता है। तो सीईसी ने वही emphasize किया दैट देयर इज नीड फॉर एन ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ इलेक्टोरल मैनेजमेंट। सो इलेक्शन इंटेग्रिटी इंडेक्स उन्होंने प्रपोज किया एंड इट वुड रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिविटी एंड फेयरनेस। तो की कंपोनेंट क्या कंसिडर किए जाएंगे? तो उसमें बेसिकली वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंसिडर किया जाएगा, क्या कैंपेन फाइनेंस रेगुलेशन है, साथ ही साथ कैसे ऑटोनॉमी है ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज। सो इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम को हम यूज भी कर सकते हैं एज अ मॉडल, जिसमें ECI को हम देख रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करें ताकि ट्रांसपेरेंसी को हम बढ़ा पाए। तो डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, देन ऑल्सो ग्लोबल गवर्नेंस में दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ न्यू चैलेंजेस भी हैं जो कि CAC ने भी हाईलाइट किए, दैट इज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस that can come through cyber interference और डिसइंफॉर्मेशन। तो इनको भी टैकल करना उतना ही जरूरी हो जाता है। देन लिक्विडिटी डेफिसिट, so liquidity shortfall in the banking system, it has reached a decadal high of 3.3 lakh crore rupees. तो RBI it will be intervening through liquidity injections ताकि स्टेबलाइज किया जा सके। क्या फैक्टर्स हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया, कैश स्क्वीज का जो कि इंटेंसिफाई हो रहा है। सो सीजनल cash demand during the festival season, it increases. Then increased government spending and auction related outflows are there. पॉलिसी रेट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर है बाय द इन्फ्लेशन। सो ये डेफिसिट जो है इट कुड ऑल्सो इंक्रीज द बोरोइंग कॉस्ट, जो कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी बिजनेसेस या इंडिविजुअल के लिए भी उनको इम्पैक्ट कर सकता है। देन मिनरल स्टेट्स दे लीड द फिस्कल इंडेक्स। तो मिनरल रिच स्टेट्स जिसमें आती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात, they have basically emerged as the top performers in the नीतीश fiscal health index, क्योंकि डेट्स सस्टेनेबिलिटी है, एफिशिएंट रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है हेल्दी। बट चैलेंजेस भी हमने देखे तो ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिनका हाई डेट टू GDP रेशियो है, वीक रेवेन्यू जनरेशन है। देन इसरो लॉन्चेस 100th navigational satellite NAVIC system with the atomic clock। तो एटॉमिक क्लॉक इंपॉर्टेंट हो जाता है IST टाइम स्टैंडर्ड को प्रिसाइजली बताने के लिए। रूबियम, डिफरेंट डिफरेंट बेस्ड एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं। तो जो सैटेलाइट है इट इज अ पार्ट ऑफ NAVIC, NAVIC जिसको हम बोलते हैं नेविगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, एंड बेसिकली इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव हम बोल सकते हैं ऑफ GPS। सो इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक को यूज किया जाएगा ताकि सेल्फ रिलायंट टेक्नोलॉजी को और ज्यादा हम प्रिसाइज बना पाए। NAVIC की भी जो कैपेबिलिटी है टू इनहेंस
दी नेविगेशनल कैपेबिलिटी सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए भी, उसमें भी हमें हेल्प करेगा। फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च इन 2013। सो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है इंडिया का ग्रोइंग कैपेबिलिटी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, एंड कैसे इंडिया साइंटिफिक डिप्लोमेसी को भी यूज कर रहा है एंड कंट्रीब्यूट कर रहा है ये इंडिया के लिए सॉफ्ट पावर में भी। तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म। जो नीति आयोग की फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म जिसका एग्जाम्पल हम रिसेंटली फ्रीबीज भी बोल सकते हैं। देन ऑल्सो क्लाइमेट चेंज, दे विल बी पुटिंग फिजिकल प्रेशर ऑन दी स्टेट्स। तो टॉप 3 में आती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। टॉप लास्ट में आती है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड देन ऑल्सो पंजाब। सो फिजिकल चैलेंज है, स्टेट जो है दे आर फेसिंग राइजिंग डेट बर्डन्स क्योंकि पॉपुलिस्ट मेजर लिए जाते हैं, जैसे कि सब्सिडीज मैंने बोला या फिर फ्रीबीज दिया जाता है। क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स जो है वो भी अनप्रिडिक्टेबल एंड और फ्रीक्वेंट बनते जा रहे हैं, तो उनकी वजह से भी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट स्टेट्स हैं, जैसे कि पंजाब भी आ जाता है उसके अंदर, तो उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो जो सब्सिडीज हैं, रैशनलाइज सब्सिडीज देना जरूरी है जो कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर। सो फिजिकल हेल्थ को दिखाता है ये डिफरेंट स्टेट्स की, एंड कैसे वेलफेयर मेजर्स जो लेती हैं स्टेट्स, कैसे जरूरत है उसको बैलेंस करने की विद द फिजिकल डिसिप्लिन ऑल्सो। देन व्हाई बॉम्बे हाई कोर्ट इट सेड द यूज ऑफ लाउड स्पीकर इज नॉट एसेंशियल फॉर रिलीजन। ये हमने ऑलरेडी कल भी कवर किया कि कैसे नॉइस पोल्यूशन रूल्स 2000 के अंदर एक परमिसिबल नॉइस लेवल सेट किया गया है और 55 डेसिबल्स फॉर डे एंड 45 डेसिबल्स फॉर नाइट इन द रेजिडेंशियल एरियाज। तो जो लाउड स्पीकर एंड पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, इट मस्ट अडेयर टू दीज लिमिट्स ऑल्सो इवन फॉर द रिलीजियस पर्पसेस। तो रिलीजियस फ्रीडम के लिए आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 25 बिकम्स इम्पोर्टेंट, एंड but it is also subject to public order, to health and to morality. So गवर्नमेंट भी यही, कोर्ट भी यही emphasize करता है that the use of लाउड स्पीकर जो है इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, एंड वो पब्लिक ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट के साथ अलाइन होना चाहिए। सो ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन होना चाहिए साउंड सिस्टम में ताकि एक्सीडिंग डेसिबल लिमिट को प्रिवेंट हम कर पाए। सो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ऑफ द नॉइज पोल्यूशन रूल्स क्योंकि वो भी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो कैसे बैलेंस करेंगे हम फंडामेंटल राइट को विद द डीपीएसपी जो कि स्टेट पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दिखाता है कि फ्रीडम टू रिलीजन है, बट उसके अलावा जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द पब्लिक ऑर्डर। देन आयरन एज began in Tamil Nadu hundreds of years earlier as it is believed right now. सो साउथ इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट साइट है हमारे लिए यहाँ पे पीटी फैक्ट, तो सिवगलई इन तमिलनाडु, सिवगलई। सो इट इज अ burial site which dates back to 1155 BCE and it reveals की evidences मिले हैं हमें आयरन टूल्स के, आयरन स्मेल्टिंग जिसको यूज किया जाता था। तो जो ग्लोबल टाइमलाइन है आयरन एज का उसके साथ ये मैच नहीं करता है, दिखाता है कि उससे भी पहले से आयरन टूल्स यूज किए जा रहे थे। प्रोमिनेंट साइट्स हैं जैसे कि किलाड़ी तमिलनाडु के ही अंदर, वहां पे भी म्यूजियम स्टैब्लिश होगा एट द एक्सकवेशन साइट। सो ये रीजनल आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज को भी प्रमोट करता है, कल्चरल हेरिटेज, नेशनलिज्म, आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जो यूरोसेंट्रिक नैरेटिव बन जाता है फॉर द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स एंड अर्ली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसको भी चैलेंज करता है, इंडिया की भी रिच हिस्ट्री को दिखाता है। देन अ लॉट एंड मोर टू डू। सो 75th रिपब्लिक डे
India has made basically significant strides डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एफर्ट्स हैं ताकि इंश्योर किया जा सके एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो कि इम्प्रूव भी हो रहे हैं, बट चैलेंजेस भी हैं। तो क्या चैलेंजेस हैं कि कैसे डिग्निटी एश्योर करेंगे हम, दैट इज गोइंग बियॉन्ड, टॉपिक ऑफ डिग्निटी इज बियॉन्ड द बियॉन्ड जस्ट प्रोवाइडिंग बेसिक ह्यूमन नीड्स। सो इमानुअल कांत भी बात करते हैं कि कैसे डिग्निटी जो है दैट इज इम्पोर्टेंट, एक्सेस टू जस्टिस, एंड कैसे इम्प्लीमेंटेशन जो है ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स उसको हम इंक्रीज करेंगे, सोशल जस्टिस को कैसे हम बढ़ाएंगे। देन सिविक एजुकेशन, अवेयरनेस अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस का रोल आता है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, क्या वो कोहेसिवली वर्क कर रहे हैं टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस, गवर्नेंस, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं रिगार्डिंग द फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टेट्स। The next is regarding Indian steel firms cautiously optimistic on Trump's move. So Indian steel manufacturers that are at risk from US's evolving trade policies under the presidency of Donald Trump. So US का जो टैरिफ लगाने की बात की जा रही है imposed on the steel imports during the Trump's first term, उसने ग्लोबल ट्रेड डायनामिक को भी इम्पैक्ट किया था। तो इंडियन स्टील एक्सपोर्टर्स जो हैं टू द यूएस, दे आल्सो फेस चैलेंजेस क्योंकि प्रोटेक्टिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई। बट जैसे जैसे एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हुआ फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स जैसे कि रशिया ड्यू टू द सैंक्शंस, तो इंडियन फर्म्स जो हैं दे सॉ एन अपॉर्चुनिटी इन द इंक्रीजिंग मार्केट। तो मार्केट शेयर इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स का इंक्रीज हुआ है, रॉबस्ट स्टील प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है इंडिया के पास। क्या चैलेंजेस हैं, यूएस की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है कि वो लोकल सप्लायर्स को प्रेफर करेंगे, अपॉर्चुनिटीज लिमिट कर दी जाएंगी फॉर द एक्सटर्नल मैन्युफैक्चरर्स, तो वो एक चैलेंज बन सकता है। देन ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, यूएस रशिया कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इट इज स्टिल अंडरगोइंग, तो वो भी स्टील के डिमांड को इम्पैक्ट करता है। देन सीबीडीसी लॉन्च, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, कैसे वो इंश्योर करेगा इकोनॉमिक और सिस्टमैटिक इम्पैक्ट। तो आरबीआई के जो डिप्यूटी गवर्नर है टी रविशंकर, उन्होंने एम्फसाइज किया ऑन टेस्टिंग बिफोर द फुल लॉन्च स्केल। तो चैलेंजेस क्या दिखाए गए कि जो सीबीडीसी है इट मस्ट कोएग्जिस्ट विद द एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम, कि अभी के एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम को डिसरप्ट ना करे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिसरप्ट ना करे, टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस होनी चाहिए, इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या हम फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए रेडी हैं, क्या वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। तो कैश मैनेजमेंट के कॉस्ट को रिड्यूस करेगा सीबीडीसी, ऐसा बोला जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को इनहेंस करेगा एंड ऑल्सो मॉनेटरी पॉलिसी एफिशिएंसी और जो इफेक्टिवनेस होती है उसको बढ़ाएगा। then would rather not impose tariffs on China. So US एंड चाइना प्रॉक्सी इकोनॉमिक प्रॉक्सी वॉर हम देख सकते हैं। टैरिफ्स ने पहले भी यूएस एंड चाइना के ट्रेड रिलेशन को स्ट्रेन किया है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आया है। एंड सेकेंड प्रेसिडेंसी के अंदर भी बात की जा रही थी कि 10% तक टैरिफ लगाया जा सकता है ऑन दी चाइना। तो यहाँ पे ट्रम्प ने बेसिकली एक एक्सप्रेस की है प्रेफरेंस टू अवॉइड द टैरिफ्स, बट ही लेफ्ट द पॉसिबिलिटी ओपन, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल डोमेस्टिक कंसिडरेशन है। सो बैलेंस करने की जरूरत है डोमेस्टिक इंटरेस्ट को इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के साथ साथ। देन अ विजन ऑफ 5 करोड़ जॉब्स एट द हार्टलैंड, सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अपकमिंग बजट भी इसके ऊपर फोकस कर सकता है एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रैटेजी, जिसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा रूरल एरियाज को टू बिकम द न्यू ग्रोथ इंजन्स। सो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज उनको फोकस करना चाहिए ऑन द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज।
जो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, दे कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द अंडर डेवलप्ड रीजन्स इनटू द हब्स ऑफ द बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इंसेंटिव को एक्सटेंड करने की बात की जा रही है टू द कंपनीज, ताकि वो अपने ब्रांचेस सेटअप करें इन द रूरल एरियाज ऑल्सो। तो गवर्नमेंट स्कीम जैसे मनरेगा, स्किल इंडिया, उनके लिए भी, उनको भी इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए इजी होगा। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह बढ़ना, ये हम बोल सकते हैं कि एक लॉन्गर विजन है हमारा। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव क्लस्टर्स क्रिएट करना, कॉम्प्लीमेंट्री अर्बनाइजेशन, इट विल बी सपोर्टिंग द इंडस्ट्रियल हब्स ऑल्सो। स्किल्ड वर्कफोर्स हम क्रिएट कर पाएंगे, वेजेस इंक्रीज कर पाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हम इंक्रीज कर पाएंगे। देन कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, ये हम कवर कर चुके हैं। देन ओपन एआई, so OpenAI, it faces another copyright case in India. तो CCI, that plays an important role, Competition Commission of India, बिग फॉर्म्स को लेके। सो यहाँ पे दिल्ली बेस्ड फेडरेशन है, उन्होंने पब्लिश किया एक केस फाइल विच रिप्रेजेंट्स मेजर पब्लिशर्स जैसे कि ब्लूम्सबेरी, पेंगुइन रैंडम हाउस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। तो ये जो पब्लिश क्लेम है वो ये क्लेम करते हैं कि ओपन एआई के जो टूल हैं जैसे कि चैट जीपीटी, जो कि काफी ज्यादा यूज किया जाता है, इट हैज एक्सेस्ड देयर कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट परमिशन। सो सिमिलर लॉसूट और ग्लोबल लेवल पे दूसरे कंट्रीज में भी देखा है हमने अगेंस्ट द एआई कंपनी, जिसमें कॉपीराइट जो मटेरियल था वो बेसिकली चैट जीपीटी ने उठा के एंड उसको रिजल्ट में भी इंक्लूड कर दिया। एंड द यूसेज ऑफ द कॉपीराइटेड डेटा फॉर ट्रेनिंग ऑल्सो, एल्गोरिदम क्रिएट करने के टाइम पे। सो इंडियन लॉ सूट जो है, इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन सेफ गार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन द डिजिटल एज, एंड इट कुड ऑल्सो सेट अ प्रेसिडेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ एआई रिलेटेड लीगल चैलेंजेस। सो ये केस हाईलाइट भी करता है टेंशन बिटवीन प्रोटेक्टिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है। बट क्या, कैसे हम एक लाइन मेंटेन करेंगे कि जो कॉपीराइटेड मटेरियल है वो यूज ना हो एंड डेटा सिक्योरिटी भी हम मेंटेन कर पाए। तो आईपीआर का यहाँ पे बेसिकली इशू बोल सकते हैं हम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इनोवेशन एंड जो क्रिएटर है उसके बेसिकली राइट्स का क्या। So technology ka governance becomes important, regulation becomes important. So thank you so much everyone for joining Ansarkari. Keep watching and keep learning with us.